Hello students, in our today's lecture of the cash budget, we are going to solve the illustration number 4 and 5. Let's start with the illustration number 4. As we are slowly and gradually doing this sum, the more tough and critical adjustment are coming in the cash budget. So let's understand carefully the illustration number 4. On the basis of the following information, prepare a cash budget for a garden manufacturing company for a 6 month from July to December 2012. First adjustment, cash sales are 70% and credit sale are 70% and cash sales are 30% of the sales. Then second point, 50% of the credit sale are collected in the month after the sale, 40% in second month and 10% in a third month. Carefully remember this, 50% in a next month, 40% in the second next month and 10% in a third month. That means 50% is lag period is 1 month, 40% lag period is 2 months and 10% lag period is 3 months. So we have to find out the credit sale collection period. 30% is a cash sale, so in which the month we are doing the sales, 30% of that month sales are completely cash sales, so we will collect in the same month. But in the credit sale, the lag period is 1 month, 2 months and 3 months, right? Then point number 3, company has a good gross profit margin of 25%. Sales are given April to January, sales are given. Then point number 5, anticipated sales of the each month necessary purchase are made and paid for in the preceding month. ये कहाँ पे है? परचेज की इंफॉर्मेशन दी गई है. परचेज की इंफॉर्मेशन में क्या है? जो एंटिसिपेटेड सेल है, यानी कि हमने जो सेल्स एस्टिमेट किया है उसके अकॉर्डिंगली परचेज करना पड़ेगा इन एडवांस इन द प्रीसीडिंग मंथ. यानी कि जुलाई में हमें प्रीसीड किया है कि 1,50,000 का सेल्स है, सेल्स होगा, तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करके जो अमाउंट होगी वो परचेज की अमाउंट होगी, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूडिंग 25%, सेल्स में प्रॉफिट ऐड हो जाता है. हमें क्या ढूंढना है? परचेज ढूंढना है. तो उसमें से प्रॉफिट की अमाउंट लेस करनी है जुलाई मंथ के, और उसको कब मंगवाना है? प्रीसीडिंग मंथ में. यानी कि जो जुलाई में सेल होने वाला है वो हम 1 महीना पहले मंगवा लेंगे. ऑब्वियस चीज़ है कि जुलाई में जो माल बेचना है वो हमें मंगवाना तो पहले ही पड़ेगा. तो जून में मंगवाएंगे तब जुलाई में बेच पाएंगे, जुलाई में मंगवाएंगे तब अगस्त में बेच पाएंगे. इसलिए ये परचेज की इंफॉर्मेशन है. केयरफुली अंडरस्टैंड दैट. देन सैलरी एंड वेजेस ईच मंथ इज गिवन. लेट्स सी द लेग पीरियड ऑफ दिस. Point number 7, interest on a 10% debenture 5 lakh is due on the every 3 months as per the calendar. We have issue a debenture. On the interest on a debenture we have to pay every 3 months, right? Starting with as per the calendar. Then a tax payment of rupees 50,000 due in October 2012. अक्टूबर में हमें टैक्स पेमेंट करना है. देन 9, मशीनरी ऑफ रुपीज 45,000 एंड 30,000 आर प्लान टू बी परचेज एंड पेड फॉर द अक्टूबर 2012 एंड दिसंबर 2012 रिस्पेक्टिवली. यानी कि 45,000 है वो अक्टूबर में पे होगा, 30,000 दिसंबर में पे होगा. देन द रेंट ऑफ 2,000 इज पेएबल एवरी मंथ. एवरी मंथ 2,000 का सेल रेंट पे होगा. Then a company has to cash balance of rupees 1 lakh, that is the opening balance, which is minimum desired level of the cash. Funds can be borrowed and multiply the minimum desired level of the cash. Funds can be borrowed in a multiply of the 5,000 on the monthly basis at a 12% per annum. Interest on such borrowing is payable next month following the borrowing. यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है? मिनिमम 1 लाख का बैलेंस एट एवरी मंथ शुड बी नीडेड. अगर उतना 1 लाख रुपीज़ नहीं हो रहे हैं तो हमें बोरो करना पड़ेगा इन द लॉट ऑफ द 5,000 रुपीज़ के लॉट में. यानी कि आप 5,000 बोरो कर सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000.
ऐसे लोट में बोरो कर सकते हैं और उसका पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का 12% विच इज़ फॉलोइंग मंथ ऑफ द बोरोइंग, यानी कि जुलाई में बोरोइंग किया तो नेक्स्ट मंथ अगस्त में उसका रेंट इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। दैट इज़ फर्स्ट इज कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, पेमेंट फ्रॉम कलेक्शन फ्रॉम द डेब्टर्स ऑफ द क्रेडिट सेल्स, देन प्रॉफिट, परचेज, then there is a minimum balance over there and debenture interest. So let's solve this illustration number 4. तो हमें जुलाई टू दिसंबर कैश बजट बनाना है। तो ये है कैश बजट, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ और यही हमें मेंटेन भी करनी है। अब हम ऐड करेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट में सबसे पहले आएगा सेल्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स, उसमें कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है 30% है। तो जो भी मंथ का सेल है, जुलाई का है तो जुलाई का 30%, अगस्त का 30%, क्योंकि वो कैश सेल्स है तो उसी टाइम हमें कैश रिसीव हो जाएगा। तो जुलाई का सेल है 1,50,000, 1,50,000 के 30% 45,000। देन अगस्त का है 2 लाख, 2 लाख के 30%। रिस्पेक्टिवली सारे मंथ के हम ऐसे ही कैश सेल्स एट 30% फाइंड आउट कर लेंगे। सितंबर का भी आएगा 60,000, देन अक्टूबर का आएगा 90,000, नवंबर का 75,000 एंड दिसंबर का अगेन आएगा 60,000। अब आएगा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट सेल की कंडीशन क्या है, 50% इन फर्स्ट मंथ, 40% इन सेकेंड मंथ एंड 10% इन थर्ड मंथ। ठीक है, हमें कौन सी करनी है, जुलाई का करना है, जुलाई का कलेक्शन पीरियड देखना है। ठीक है, तो जुलाई के एक मंथ पहले कौन सा आएगा, जून आएगा। जून बाद में 40% 2 महीने पहले, यानी कि जुलाई के 2 महीने पहले, तो जून से आगे कौन आएगा, दैट इज मई। और 3 मंथ्स, तो मई से पहले, जुलाई से 3 महीने पहले, यानी कि 1, 2 एंड थर्ड मंथ इज अप्रैल। सो अप्रैल, मई, जून तीनों का साथ में मिला के हमें जुलाई में मिलेगा। तो अप्रैल के 10%, मई के 40% और जून के 50% हो गए 100%। 50 + 40 90, 90 + 10 100%, राइट। सो हमें 50% इन द फर्स्ट मंथ, दैट मीन्स जून, 40% इन 2 मंथ्स, यानी कि मई में किया है तो वो जुलाई में पेमेंट होगा, तो यहाँ पे मई आएगा। 10% इन थर्ड मंथ, यानी कि वो अप्रैल का होगा। 50% of June, 40% in the May and 10% of the April we are receiving in the July. So let's find out the amount first. First क्या है, 50% of the June. जून की अमाउंट क्या है, 4 लाख रुपीज़। जून की अमाउंट क्या है, 4 लाख रुपीज़। बट केयरफुली रिमेंबर दिस, 4 लाख के डायरेक्ट 50% मत कर देना। 4 लाख है, उसमें से 30% तो कैश सेल्स है, राइट, और 70% है वही क्रेडिट है, और क्रेडिट सेल का ही पैसा हमें जून में मिलेगा। जून का 70% क्रेडिट है, उस वही जुलाई में मिलेगा। कैश सेल्स तो हो चुका है, समझ में आ रहे हैं। जून के सेल है 4 लाख रुपीज़, आउट ऑफ 70% इज क्रेडिट। सो 4 लाख के 70% कितने हुए, 2,80,000। उसके 50% 1,40,000। सो जून के 1,40,000,
देन सेम वे मे का अमाउंट है 3,50,000, सो 3,50,000 70%, क्रेडिट सेल 2,45,000, उसका हमें मिलेगा 40%, 98,000। एंड अप्रैल का 10%, अप्रैल का है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख के 70%, 2,10,000 10%, 21,000। टोटल आएगा 1,40,000, 98,000 प्लस 21,000, टोटल इज 2,59,000। समझ में आया? ऐसा ही हमें यहाँ पे लिख देते हैं 50%, 40% एंड 10%। सो 50% आएंगे 1,40,000, देन 98,000, देन 21,000। अब आए बारी कौन सी आएगी? अगस्त की बारी आएगी। अगस्त में देख लेते हैं 50, 40, 50, 40, 10। अगस्त के अगले मंथ यानी कि जुलाई, उसके अगले मंथ यानी कि जून, और यहाँ पे मई। ठीक है, तो 50, 40 एंड 10%, जुलाई, मई, जून एंड जुलाई, 10%, 14%, 50%। राइट, आपको ऐसे ही देखना है, पहले तो मंथ देख लेने हैं कौन से पीरियड है, उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देते हैं। फर्स्ट है अगस्त में 50% ऑफ द जुलाई। जुलाई का टोटल सेल है 1,50,000, उसमें से 70% है 1,05,000, 1,05,000 के 50%, 52,500। देन 40% ऑफ द जून, जून के 40%, जून का कितना है 4 लाख रुपीज़, 70% इंटू 40%, 1,12,000। देन 10% ऑफ द मे, सो मे का 10%, मे का टोटल कितना है 3,50,000, 3,50,000, 70% इंटू 10%, 24,500। समझ में आया? ऐसे ही हमें हर मंथ का कैलकुलेट करना है। अब बारी आएगी सितंबर की, 50% ऑफ अगस्त, 40% ऑफ द जुलाई एंड 10% ऑफ द जून। ऐसे ही करते जाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे, तो हमें आंसर मिलेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे और कौन सी रिसिप्ट है या नहीं है, और कौन सी इनकम नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। ए का टोटल 1 लाख प्लस 45,000 और क्रेडिट सेल के टोटल आएंगे 4,04,000 रुपीज़, माइनस पेमेंट। सबसे पहले पेमेंट में आएगा परचेज। अब परचेज का क्या करना है, जैसे ही जुलाई मंथ का परचेज है वो 1 महीना पहले करना है, यानी कि जो हमने अगस्त का सेल प्रिस्क्राइब किया था या तो एस्टिमेट किया था, उसका परचेज जुलाई में होगा, सितंबर का अगस्त में होगा, अक्टूबर का सितंबर में होगा, नवंबर का अक्टूबर में होगा, और दिसंबर का
नवंबर में होगा और जनवरी का दिसंबर में होगा। ये 1 महीना पहले एडवांस परचेजिंग करनी है, जस्ट बिकॉज कि हमें जुलाई में जो एस्टिमेट किया था सेल्स उसका जून के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो हमें ये सब अगस्त के रिगार्डिंग होगा। 1 महीना एडवांस में करना है कि जो भी हमें अगस्त में सेल करना है वो हम कब परचेज करेंगे, जुलाई में। जो भी हमें अगस्त में सेल करना है और सितंबर में करना है तो 1 महीना आगे आएगा, या जुलाई में अगस्त का, अगस्त में सितंबर का, सितंबर में अक्टूबर का, अक्टूबर के नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में और जनवरी का दिसंबर में, ठीक है। तो हमें जुलाई में परचेज करना है अगस्त के प्रिस्क्राइब। अगस्त में हमें डिस्क्राइब किया है और एस्टिमेट किया है कि 2 लाख रुपीज़ का सेल होगा। कितने रुपीज़ का होगा, 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख रुपीज़ का सेल करना है, यानी कि हमें 2 लाख यूनिट्स परचेज तो करने पड़ेंगे। कब करेंगे, 1 महीना पहले। तो अगस्त का सेल है 2 लाख रुपीज़, उसमें 25% प्रॉफिट है, उसमें 25% प्रॉफिट है, तो हम माइनस कर देंगे तो कितना आया, 1,50,000। सो यहाँ पे आएगा 1,50,000। देन अगस्त में करेंगे हम सितंबर का सेल अगेन 2 लाख है, उसमें से 25% प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आएगा 1,50,000। देन सितंबर में अक्टूबर का, और अक्टूबर का एस्टिमेशन है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ माइनस 25%, दैट मीन्स 75%। आंसर आएगा 2,25,000। ऐसे ही हम नवंबर का अक्टूबर में करेंगे, दिसंबर का नवंबर में करेंगे। तो आंसर आएंगे 1,87,500, देन 1,50,000 and 2,25,000. This is the purchase. Next point, salary and wages. सैलरी और वेजेस का लैग पीरियड हमें कहीं भी नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं कि इसी मंथ में वो पेमेंट हो गया होगा, तो वही लिख लेते हैं वेजेस एंड सैलरी। जुलाई का 30,000, अगस्त का 40,000, सितंबर का 50,000, अक्टूबर का 50,000, देन 40 एंड 35 एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑफ द 10% ऑन द डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख, इट इज़ ड्यू ऑन एवरी 3 months एज पर द कैलेंडर। कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पेएबल होगा डिबेंचर्स को। तो देख लेते हैं, ईयर स्टार्टेड विद द 1st January to 31st December, राइट। एवरी 3 months, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, एट द एंड ऑफ द मार्च वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। सो 31st March, देन अप्रैल, मई एंड जून, तो 30th June, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट मीन्स 30th September, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31st December। ये 4 क्वार्टर में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज 4। अब मार्च और जून वो तो हमारे कैश बजट में है ही नहीं, हमें कौन कौन से मंथ में पेमेंट करना है, सितंबर और दिसंबर में। तो हम सितंबर में पेमेंट करेंगे और दिसंबर में पेमेंट करेंगे, राइट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी। सो 5 लाख रुपीज़ इंटू 10% इंटू 3/12, 3 महीनों के लिए 5 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, 12,500। 12,500 किस मंथ में, सितंबर और दिसंबर में।
देन a tax payment of rupees 50,000 due in October 2012. अक्टूबर में हमें पेमेंट करना है 50,000 टैक्स. देन machinery 45,000 and 30,000 are purchased which is paid in October and December respectively. अक्टूबर में हमें 45,000 का पेमेंट होगा और दिसंबर में पेमेंट होगा 30,000 का. मशीनरी परचेज. देन rent paid 2,000 payable every month, so we have to pay rent 2,000 and we have to maintain 1 lakh rupees कैश बैलेंस. और अगर कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज़ नहीं हुई तो बोरो करना पड़ेगा और बोरो करने के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. तो पहले देख लेते हैं किस मंथ में बोरो करने पड़ेंगे. तो पहले बी का टोटल कर लेते हैं, फिर ए माइनस बी एक्चुअल बैलेंस देख लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि बोरो करना है या नहीं करना है. ठीक है. Let's find out total of the B. 1,50,000, 30,000 plus 2,000, 1,82,000. 1,82,000. 4 lakh minus 1,82,000. बैलेंस आई 2,22,000. 2,22,000. तो हमें बोरो करने की ज़रूरत होगी, बोरो करने की ज़रूरत नहीं होगी, इंटरेस्ट भी हमें पे नहीं करना पड़ेगा. तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगी? 2,22,000. ठीक है. तो यही बैलेंस हमें यहाँ पे लिखेंगे 2,22,000 प्लस टोटल एक्सेप्टेंस, उसका टोटल आएगा 2,22,000 प्लस 60,000 प्लस 52,500, 1,12,000 एंड 24,500. टोटल आएगा 4,71,000. पेमेंट का टोटल देख लेते हैं 1,92,000. 4,71,000 में से 1,92,000 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2,79,000. बोरो करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो वही बैलेंस आ जाएगी. यहाँ पे लिखेंगे 2,79,000. टोटल करेंगे, टोटल आएगा 4,79,000. पेमेंट का टोटल 2,89,500. बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस आएगा 1,89,500. बोरो करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? टोटल विल बी 4,16,000. देन पेमेंट का टोटल हो जाएगा 3,34,500. डिफरेंस देख लेते हैं, तो डिफरेंस आएगा 4,16,000 माइनस 3,34,500, 81,500. अब हमें क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ तो मेंटेन करने हैं. ठीक है. तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ नहीं हो रहे हैं, तो हमें बोरो करना पड़ेगा. बोरो कितने में करना है? 5,000 के लॉट में करना है. तो हमें पहले देख लेते हैं ज़रूरत कितनी है. 18,500 की ज़रूरत है. एडिशनल 18,500 वी हैव नीडेड. सो हमें बोरो करने पड़ेंगे 5,000 की लॉट में, यानी कि 5, 10, 15 और 20.
20 करेंगे तो ही हमें इतने अमाउंट मिल सकते हैं। तो बोरो करेंगे हम 20,000 रुपीज़, बोरो करेंगे हम 20,000 रुपीज़। अब टोटल कर देंगे 1,01,500 और इसका इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ में पे होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 1,01,500, टोटल करेंगे तो आएगा 3,51,500। पेमेंट का टोटल करेंगे तो आएगा 1,92,000, बैलेंस आएगा 1,59,500। अब अगेन यहाँ पे बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम, 12% per annum which is payable on the next month of the borrowing। 12% per annum का है, बट हमें कहाँ पे बोरो करना है? सिर्फ फॉर एक मंथ के लिए ही। अमाउंट आएगी 200 रुपीज़ और हमारे पास इनफ रुपीज़ है कि ये 20,000 जो हमने बोरो कर रहे थे वो रीपे तो करना पड़ेगा, तो हम रीपे कर देंगे 20,000 रुपीज़ लेस। सो टोटल हमने 20,200 हमें वापस करने हैं, तो वो लेस हो जाएंगे। 1,59,500 में से 20,200 लेस हो जाएंगे, तो बैलेंस आएगी 1,39,300। ये बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे दिसंबर में। 1,39,300, टोटल इज 3,84,800। दिस टोटल 3,04,500। बैलेंस देखेंगे तो आएंगे 80,300। अगेन यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो अगेन बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो कितने करेंगे हम? ज़रूरत कितने की है देख लेते हैं। 1 लाख माइनस 80,300 19,700। तो ऑब्वियस थिंग है हमें 20,000 बोरो करने पड़ेंगे, तो आंसर आएगा 1 लाख रुपीज़ 300। इसका पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे, बट वो हमें क्रिएट नहीं करना है, तो सिर्फ ऐसा ही कैश बजट बनाएंगे। प्रैक्टिकल नंबर 9 काजल वैष्णवी लिमिटेड एंड प्रैक्टिकल नंबर 10 Kapadia Textile Limited. You have to do in your practice work for your practice, and illustration 5 we have continue in the next lecture. Okay, thank you.